हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। तो जब मैं कैट 22 में मेरा मार्क्स आया, कैट 23 में मेरे को इंटरव्यू प्रिपरेशन करना था, तो मेरे फ्रेंड के थ्रू रिकमेंड किया गया कि भाई यहाँ ज्वाइन करो, सुधांशु भैया है। आई एम श्योर आप कुछ लोग सुधांशु भैया को पहले से भी जानते होंगे थ्रू अदर मीन्स, थ्रू यूट्यूब चैनल्स एंड द वे दैट ही कैरीज हिमसेल्फ। बट येस, द वे ही टॉक टू मी दैट टाइम, मेरा क्योंकि फाइनल शॉट था, ठीक ठाक परसेंटाइल थी, so I placed all my interview burden on his shoulders. Definitely, I was the one who will do the hard work, but he will be the one who will guide me where to do the hard work. And उन्हीं के मदद से मैं बोलूंगा डेफिनेटली आई क्रेडिट माई सेल्फ एज वेल। बट यस, द रोल ऑफ अ गाइड, एक चाणक्य का जो रोल होता है वो आप कभी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। एंड ही हेल्प मी बिकम वॉट आई वॉज एट दैट टाइम। उसके बाद जब मैंने खुद का जीडीपीआई कोर्स चलाया तो उनका लर्निंग्स भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। हाउ ही मेड हिज स्ट्रक्चर, हाउ ही कंडक्टेड सेशंस, हाउ ही टुक मॉक पीआई। आई रिमेम्बर रात को मैंने उनके साथ रैंडमली 2 मॉक पीआई लिया था, एंड वो मेरे जिंदगी के वर्स्ट मॉक पीआईज थे। बट दैट लर्निंग विच केम, किस तरह से उन्होंने फिर मुझे बताया कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली आवर शेयर्ड इंटरेस्ट फॉर मार्केटिंग मेक्स इट मच मोर इंटरेस्टिंग टू फॉर अस टू टॉक। अभी रिसेंटली भी मैंने उनसे कुछ करियर एडवाइस ली थी, सो ही वॉज जेनरस इनफ कि ठीक है चलो टाइम देते हैं। तो you will see that side of him where he's a mentor, where he's an educator, where he has helped me, and he is here to help you as well. He has, I think I am Lucknow graduate if I'm not wrong, and he has scored more than 99.5 percentile. 7. 99%, ओके। तो आपको वो पर्सपेक्टिव भी मिलेगा जहाँ पे टीचर पर्सपेक्टिव, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, एक मेंटर पर्सपेक्टिव है। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज he has worn multiple hats during my preparation stage, not just a mentor but a teacher as well, and right now as someone who I am collaborating with. So I'm sure you will also get a lot of insights from this conversation. We are so much happy to have you, Sudhanshu Bhaiya. Let's Thank you so much, Hemant. Thank you so much. It is also a very a moment of pleasure, happiness for me to have this discussion with you. You've been a part of my life. One of my mentees also, and I'm absolutely proud to see you where you are doing well in life, and I wish you absolutely the best. And absolutely excited for this very very amazing conversation that I believe can help out a lot of people who are associated to the channel and who are watching the channel, so that we can help them out in the remaining time that they have before CAT, and also with whatever queries that they might have. definitely. So let's start. आप अपने बारे में थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए लोगों को, ताकि लोग आपसे कनेक्ट कर पाए। एंड देन we'll talk more about how in the remaining time people can actually make sense of how to approach cat, what they can do better. And the mock season is already started, so that will be our main theme. Yes, so we are going to talk about mock, but before that, Hemant, कुछ चीजें already you have mentioned. So I have been a mentor, guide. Some people call me Bhaiya also, like you. To more than 8,000 people that over the last 10 and a half years that I've been in the entire CAT preparation domain. I started off, my journey of CAT preparation around 2015. Prepared properly, prepared well. And even before that, I was actually training for CAT. That really helped me. तो जब मैं तैयारी कर रहा था उसके पहले से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। उससे मुझे बहुत हेल्प मिला और मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीजें पढ़ाते पढ़ाते ही सीखी हैं। So, I when I got a 99.7, I, I felt that this is something which I can help a lot of other people also get. आज के डेट में we have students getting 99.97. Last year we had Aditya, we had last to last year Kavyansh 99.91 percentiles. So मेरे लिए more than my percentile over the last 8-10 years, achievements have been how the students have been doing. People like you, people who have even excelled and gone ahead of my score. That is a bigger achievement for me, and that is something which I believe that is something which defines me, and the journey has been absolutely amazing. So I went to IIM Lucknow. I did my finance and marketing from there.
Then I've also worked with general management organizations like Aditya Birla Group in their group leadership program, and also Reliance in their group leadership program. And those experiences have also built me apart from the education segment that we've been part of, helping students. And over the last 7.5 years that I've been part of Litmus, it has been absolutely exhilarating in terms of helping students, guiding them, also personally interacting with them to make sure that they are not left alone. Even if you talked about late night sessions, right? For example, whether it is late night conversations, whether it is long conversations with one student, and even when they are not a student with us, in terms of people who have studied with us, if they connect with us even later for a quick query or a guidance or anything, we are always there, and we would always be there to sort of help them out and make sure that they are wherever they are doing well. That's something which I am really looking forward to. ग्रेट। तो एक चीज तो डेफिनेटली लोग समझ गए होंगे कि आप थोड़े प्रोडिजी काइंड के हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ने से पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था, सो यू कैरीड दैट थिंग। बट बिकॉज यू टॉट पीपल एज वेल, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव टॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, so that experience which you bring to the table as a teacher, what a student should do matters a lot. And as you know, you have been in this industry कि बहुत लोग ने जून में प्रिपरेशन शुरू की होगी क्योंकि उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला होगा जो कॉलेज का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उनका जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ है। तो करेक्ट। बहुत उनको स्ट्रेस हो जाता है कि 6 महीने बाकी है। मैंने पर्सनली जब अपना लास्ट प्रेप किया था तो मैंने 23 जुलाई से शुरू किया था, एंड फिर भी मेरे से हो गया। तो आई करेक्ट। नो you do it in a structured way, यस। you can do it. एब्सोल्युटली। It will require hours. तो आपका क्या टेक है इस पे, एंड how do you think a person who has started in June, what should be the milestone that they should have ahead in time when they should start taking mocks, and then what are the kind of subjects they should do? ओके। सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट टू दिस हेमंत। सो मैंने वैसे तैयारी, जब मैं अपने कैट की तैयारी मैंने शुरू की, तो फॉर्मली मैं फरवरी मार्च से मैंने अपना एक टेबल, एक स्टडी टेबल, एक प्लान बना के मैंने शुरू किया। लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर एक डेट जो मुझे बहुत क्लियरली याद है। वो डेट था 27 जून। ठीक है। Okay. उस 27 ऑफ जून को मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम कैलकाटा टू भुवनेश्वर। ठीक है। सो कैलकाटा इज ऑल्सो अ प्लेस दैट आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ। तो उस पॉइंट इन टाइम पे मैं जब कैलकाटा में था, ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई वॉज अर्निंग। ठीक है। तो मेरे पास थोड़े पैसे आ रहे थे, तो मैं थोड़ा पार्टीज और ये सारी चीजों में लगा रहता था। ठीक है। एंड आई वॉज एक्चुअली नॉट स्टडिंग अलॉट। मतलब मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रक्चर था ना, वो बहुत ही क्लियर या बहुत क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था। मैं बस पढ़ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे ही तैयारी कर रहे होंगे। तो जी। आई वुड से फॉर बोथ द काइंड, वन काइंड विच इज बेसिकली पीपल हु आर हु स्टार्टेड ऑलरेडी, जिन्होंने फरवरी में ही चालू कर दिया होगा लेकिन अभी तक कुछ खास प्रिपरेशन नहीं हुआ और होगा। हाँ। करेक्ट। और दूसरी कैटेगरी जो अभी शुरू कर रहे हैं, मैं ये हम्म, मानता हूं कि दोनों के लिए खासम खास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर यहां से भी एक स्ट्रक्चर, तुमने बहुत सही बोला कि यहाँ से स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन अगर अगर हम करेंगे तो जरूर हम कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैं ये कहूंगा, यहाँ से जो अपने पास टाइम है ना, कुल मिला के लेट्स से 130 132 डेज जो भी बचे हैं अपने पास में, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले एक पार्ट जिसमें आप रख दो अपना प्रिपरेशन, लेट्स से 65 डेज का प्रिपरेशन रख दो, 65 डेज का आप रिवीजन रख दो। जो आपका 65 डेज प्रिपरेशन वाला है, उसके अंदर आप प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करो, नंबर 1 पे रखो, और नंबर 2 पे आप मॉक्स एंड सेक्शनल्स को रखो। और अगले वाले जो 65 डेज में है, उसमें मॉक्स एंड सेक्शनल्स को नंबर 1 पे रखो, और आपका रिवीजन को नंबर 2 पे रखो। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। मॉक्स लेकिन आपको अभी से शुरू करने चाहिए। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे मान लो 65 डेज में सिलेबस हिम्मत कंप्लीट करना है, तो कैसे करना चाहिए? देखो, right. बहुत सिंपल हिसाब है। सिर्फ टाइम अकाउंट करने से नहीं होगा कि मैं 2 घंटे कॉन्ट्स पढ़ूंगा, 2 घंटे डीएलआर, 2 घंटे बीआरसी, ऐसे नहीं होगी तैयारी। आपको बहुत क्लियर कट समझना पड़ेगा कि एक्चुअली करना क्या है।
तो सबसे पहले, अब जैसे मान लो क्वांट्स का एग्जांपल लेते हैं। क्वांट्स के अंदर मेजरली 5 टॉपिक्स हैं: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम। अब इसमें अगर अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री देखें, ये करीब करीब अपना 75% तो यही हो जाता है, 70 to 75% आपका यही है। आराम से। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से 65 डेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मोटा मोटा आपको मान के ही चलना चाहिए कि 35 से 40 दिन आपको इन तीनों के अंदर डालने हैं। ठीक है। 35 से 40 दिन में आपको क्या करना है? 35 से 40 दिन में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करने हैं, पहला नंबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कम से कम, अगर आप मैथ्स के अंदर कमजोर भी हैं, तो कम से कम फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कि फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन मुझे कोई भी दे दो, मैं सॉल्व कर दूं। सही बात है। ठीक है, तो वो होना चाहिए। सिमिलरली डीआईएलआर के अंदर मैं ना एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। दिखाइए। मेरे पास आई हैव समथिंग जो मैं दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके। डीआईएलआर के अंदर क्या होता है ना, कि हम लोग बहुत रैंडम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। एक बार मैं इसको मैं शेयर कर रहा हूँ हेमंत। आई वुड जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स कि सब लोग पहले इसको देख लें। और मैं, जो व्यूअर्स भी आपके चैनल के थ्रू इसको देख रहे हैं, उनको मैं एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इसमें से कितने टाइप्स हैं जो आपने करे। फिर मैं इसके ऊपर आपको एक दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताता हूँ डीआईएलआर की तैयारी से रिलेटेड, और फिर थोड़ी सी बात बीआरसी की करेंगे, फिर मॉक्स के अंदर चलेंगे जो अपना मेजर एजेंडा है। तो मैं भी लोगों को ऐसे ही गाइड करता हूँ, जहाँ पे मैं उनको बोलता हूँ कि आपको बकेट बनाना पड़ेगा, एंड देन उसके हिसाब से यू हैव टू जस्ट गेट डन विद ईच ऑफ देम। सबके 10-10 सेट एटलीस्ट करो बिफोर सेइंग कि मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, आई थिंक, चार्ट दैट पीपल कैन रेफर टू। सो एब्सोल्युटली। सो अगर अब फॉर एग्जांपल आई एम श्योर सब लोगों ने देख लिया होगा, अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि एक्चुअली आपने इसमें से कितने टाइप्स करे हैं, सच में आपने कितने करे, हैंड ऑन हार्ट। अब सोचो, अभी फॉर एग्जांपल मैं, आई वाज इंटरैक्टिंग विद अ स्टूडेंट जिसने मुझे बोला कि सर आई नीड अ पर्सनल मेंटोरशिप। मैं बोला ठीक है, चलो कनेक्ट करते हैं। मैंने उसको पूछा कि क्या परेशानी फेस कर रहे हो। उसने मुझे बोला कि सर मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं डीआईएलआर में स्ट्रगल करता हूँ। मैं बोला ठीक है। मैंने ये वाला चार्ट खोल के सामने रख दिया। बोला मेरे को बताओ कितने वैरायटीज करें। उसने बोला कि 4 वैरायटीज। चार कौन से वैरायटीज बोला, वो भी बता देता हूँ। उसने बोला एक मैंने तो होगा अरेंजमेंट्स किया है। एकदम। ठीक है, ये सबने किया होता है क्योंकि, ठीक है। हाँ। उसके बाद एक दो चीजें उसने बोली। उसने बोला ब्लड रिलेशन मैंने किया हुआ है। उसने मुझे बोला कि मैंने इसके अलावा एक हिस्टोग्राम किया है, और मैंने पाई चार्ट किया है। अब अगर गौर से देखें, तो पूरे कुल मिला के जो आपके 30 से 35 वैरायटीज हैं, है ना, उसमें उसके 4 वैरायटीज करे हुए हैं। एक्सपोजर जो है वो बहुत कम है। हम लोग जनरली थॉट प्रोसेस डीआईएलआर में ये बना के चलते हैं कि ढेर सारे सेट सॉल्व कर दो, बट ये नहीं देखते कि एक्चुअली तुमको कितना विड्थ मिला। तो वही बात है। विड्थ और एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है डीआईएलआर के अंदर। तो जब अब तुम सॉल्व कर रहे हो, तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि भाई, तुम्हारे सारे के सारे वैरायटीज के अंदर अगले 1 महीने का प्लान, मैं, तुम अगर फॉर एग्जांपल 60 डेज का प्लान बनाना चाहते हो ना, 60 डेज का प्लान बहुत सिंपल है। चाहे तुम 200 सेट ही करो, लेकिन हर एक वैरायटी के अंदर तुम्हारा फॉर एग्जांपल लेट्स से 8 से 10 सेट। ठीक है। स्पेशली इसके अंदर कुछ कुछ सेट्स, बहुत कुछ कुछ टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। और गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के अंदर अपने सब वैरायटीज भी हैं, जैसे तुम्हारा राउंड रॉबिन होता है, सीड बेस्ड होता है, नॉकआउट एलिमिनेशन होता है, डबल एंट्री मैट्रिक्स होता है, उसके अलावा पॉइंट्स बेस्ड होता है। ये हम्म। आपके कुछ की वैरायटीज हो गए। उसके अलावा तुम्हारा पजल्स, नंबर्स पजल, ग्रिड पजल, मैट्रिक्स पजल, इंपॉर्टेंट वैरायटीज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, सो दैट वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। हाँ, आप उसके प्लीज। अलावा आपका जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्केड्यूलिंग आपका एक और इम्पोर्टेंट बन जाता है। सेट थ्योरी भी आज से 2 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, पिछले 2 साल से आया नहीं तो भाव कम हो गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी भी वापसी कर सकता है ना। एकदम। है ना, तो इसका वो है कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते, ये वैसा वाला है। ठीक है, तो इसको अगर आपने छोड़ा और आ गया सेट थ्योरी, 4 सेट वेन डायग्राम। मेरे समय आया था। मैंने फर्स्ट सेट ही सेट थ्योरी उठाया था हाँ, 2022 तो में। 2022, आई थिंक 2022 में आया, 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया। उसके पहले आपका हर पेपर में है, 22 में भी है, 21 में भी है, 20 में भी है। उसके पहले आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में दिख जाएगा सेट थ्योरी।
तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस हिसाब से अगर देखें तो। उसके अलावा रूट्स एंड नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट बनता है, बाइनरी लॉजिक आपका अगेन इंपॉर्टेंट बनता है। रिलेटिवली इनसे थोड़ा सा कम लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा आपका स्टैक्ड बार ग्राफ, अगेन मैं जो टिक कर रहा हूँ वो आपका नेक्स्ट बेस्ट एलिमेंट्स हो जाते हैं, वो बन जाता है। रेडार चार्ट, स्पाइडर चार्ट आपका आने लग गया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स बेस्ड आने लग गया है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स आपके अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बेस्ट अगर हम देखें, उसके अलावा टीम फॉर्मेशन या ग्रुपिंग वाले प्रॉब्लम्स। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बनते हैं। अगर केस आप फॉर एग्जांपल लेट्स से 100% लाना चाहते हो तो सब पढ़ो, ठीक है। इस बार हमारे पास वी हैड अ स्टूडेंट जिन्होंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 22 क्वेश्चन आए थे, 19 के 19 क्वेश्चन सही थे डीआईएलआर के अंदर। तो डीआईएलआर के अंदर अगर सारा तुमको मतलब इस लेवल पे परफॉर्म करना है तो तुमको सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर 90 परसेंटाइल क्रॉस करना चाहते हो तो जो मैंने सर्कल किया वो अच्छे से करो, और जो मैंने टिक किया है वो अच्छे से करो, ठीक है। अगर करना है तो सारा करो, लेकिन डीआईएलआर में तुमको 22 क्वेश्चन हो प्रेफरेंस। गए। यस हेमंत। डीआईएलआर में 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। 22 क्वेश्चन हो गए हैं ना डीआईएलआर में, फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो पहले आई थिंक 2022 में 20 क्वेश्चंस होते थे हाँ। डीआईएलआर में, 23 में भी 20 क्वेश्चन था डीआईएलआर में, 24 में वीआरसी 24, क्वांट्स 22, डीआईएलआर 22, टोटल 68 क्वेश्चंस थे। पहले ओके। 198 मार्क्स का पेपर होता था, अब 204 नंबर का पेपर। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहता है ना। तो वो हो गया तुम्हारा फॉर एग्जांपल लेट्स से डीआईएलआर का। अगर तुम्हें प्लान करना तो इस तरीके से प्लान करो। वीआरसी के लिए अगर अगर अपने को करना है, वीआरसी के अंदर तो बहुत सिंपल है। वीआरसी के अंदर अपना रीडिंग डेली होना चाहिए। अच्छा, रीडिंग के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है जो हमको समझना पड़ेगा, एंड दैट इज कि भाई वैरायटी है कि नहीं रीडिंग के अंदर। एक एग्जैक्टली। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ। हम लोग जब रीडिंग करते हैं ना, तो हम रीडिंग के अंदर ये नहीं देखते कि भाई हम क्या रीडिंग कर रहे हैं, मतलब what is the content looking like, what is it that I am going to do, what is it that I am looking at. Let me share it, now that I am here. So मैं एक interesting element share करना चाहता हूँ। So Himant, if you look at, is my screen visible? इट्स लोडिंग। यस। है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसको देखेंगे ना, तो अपने पास इसमें मैंने लिस्ट किया हुआ है कि कौन से वेबसाइट्स हैं जहां से तुम रीडिंग कर सकते हो। काफी सारे मॉक्स में जब हम आरसीज बनाते हैं ना, तो भी हम इनसे ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक हम्म। है। तो ये अपने अच्छे वेबसाइट्स हैं फॉर रीडिंग, अगर आप रीडिंग करना चाहते हो। और हर एक वेबसाइट का हमने स्पेशलिटी भी इसके अंदर डाल रखा है, कि देखो स्पेशलिटी आ गया। ये बहुत अच्छा किया आपने। हमने जॉनर भी डाला हुआ है कि कौन से जॉनर के ऊपर कैट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन जॉनर के अंदर पढ़ाई करिए। आपको रैंडम नहीं करना है, आपको पढ़ाई में एक एक प्रोसेस लेके आना है, एक स्ट्रक्चर लेके आना है। तभी एक रिदम बनेगा, नहीं तो हाफाजार्ड तरीके से तो फिर कोई तैयारी हो नहीं पाएगी। सही तो बात। देखो ये वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स को देखना शुरू करो। अगर आपको ये लिंक्स चाहिए तो ये लिंक्स मैं हेमंत के साथ शेयर कर दूंगा, ये सारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर देंगे। स्पेशलिटी हो गया, जॉनर हो गया, इन जॉनर में आपको क्वेश्चंस कैट में पहले आ चुके हैं, इसमें पढ़ाई करना शुरू करिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन का इशू हो रहा है, तो आप अगर ऑन ऐसे मान लो पढ़ रहे हो तो बीच से पढ़ो, स्टार्ट से मत पढ़ो। बीच से पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत होगी। जितना ज्यादा चैलेंज तुम फेस करेगा उतना तुमको इम्प्रूवमेंट फील होना शुरू होगा बीआरसी के अंदर। चीज सो में एक मैं ये ऐड करना इंपॉर्टेंट है। चाहता हूँ। सॉरी हेमंत। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ जो शायद हमारे समय में नहीं थी बट अब है, जो है एआई। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एऑन एसेस खोलते हैं, एऑन करेक्ट। एसेस टॉपिक के नीचे समरी लिखा रहता है, और वो करेक्ट। बोलते हैं कि हेमंत मैंने पूरा ऐसे पढ़ा, और हाँ। समरी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द ऑथर हैज रिटन। करेक्ट। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई उस वेब पेज का प्रिंट लो, चैट जीपीटी में जाओ, बोलो कि मेरा समरी मैंने ये डाला था, एंड ऑथर का समरी ये है, वेयर डू यू थिंक इज द गैप इन माई अंडरस्टैंडिंग। एंड फिर वो जब समझा रहा है तो आप उससे बातें करो कि नहीं मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा, क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट प्रोसेस वेयर यू आर इंटरोगेटिंग योर ओन माइंड या विल ओपन थिंग्स अप। हम लोग ऐसा मतलब एब्सोल्युटली। हुआ नहीं ये चीज। In fact, Hemant, I know that you also did, the bulk of your preparation in the last, 3, 4 months. हाँ, मैं So 4 मंथ। how did you go about your preparation? I am sure वो भी काफी relevant रहेगा।
मेरा सिंपल था, जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर निकाला। पहला मेरा था कि मेरे को कितना मार्क्स लाना है, मेरे को ये पता करना था। क्योंकि लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सब लोग 100% का टारगेट लेके शुरू करेंगे नहीं होता है। तो मेरे को अपना, अगर बहुत ब्लंट वर्ड्स में बोलूँ, औकात पता करना था कि भाई मैं कितना ला सकता हूँ, मेरे को कितना लाना है अपने कॉलेज में जाने के लिए जो मेरा टारगेट है। उसके हिसाब से मेरे को पता चला 75 मार्क्स लाना है, तो 25 मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शंस। अब 25 मार्क्स अगर आपको क्वांट्स में लाना है, विच इज 9 या 8 करेक्ट क्वेश्चंस, 8 करेक्ट क्वेश्चंस, 15 out of 22 questions for the last 3 years are coming from arithmetic and algebra. वेरी क्लियर भाई, अरिथमेटिक और अलजेब्रा के अलावा कुछ छूना ही नहीं है। बट उसको इतने अच्छे से करना है कि उससे मैं कर लूँ। सिमिलरली जो आपने डीआईएलआर का बोला, मैंने देखा कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स आते हैं, उसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया, उसको प्रैक्टिस किया। एंड आई फोकस्ड लॉट ऑन टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, बिकॉज भाई लोग खुद को 1 घंटा दे रहे हैं एक सेट सॉल्व करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम प्रैक्टिस में ही अपने माइंड को बोल दोगे कि तेरे को जितना टाइम लेना है ले, तो वो एग्जाम में काम नहीं करेगा। गिव योर सेल्फ लिमिटेड टाइम एंड देन प्रैक्टिस। नहीं हो रहा है भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम है। एंड थर्ड चीज जो मेरे लिए मेजर रियलाइजेशन था, आई एम नॉट श्योर इफ यू एग्री और नॉट, बट आपने ये चीज बोला है, डू नॉट डू हार्ड क्वेश्चंस अलॉट। व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग क्या है, लेवल 3 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये सोचिए कि लेवल 1 और लेवल 2 तो हो ही जाएगा। एंड बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग लेवल 3 क्वेश्चंस, आई डोंट इवन नो हाउ लेवल 1 और लेवल 2 क्वेश्चंस लुक लाइक। तो मैं एग्जाम में गलत पिकअप करता हूँ। और करेक्ट। इजी क्वेश्चन का ये भी है कि अब बहुत लोग बोलते हैं इजी क्वेश्चन तो हेमंत 2 मिनट में हो जाता है, 2.5 मिनट में हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन यही रहता है उनसे कि क्या वो क्वेश्चन 2.5 मिनट का था? इजी था, ठीक है। अगर वो 1 मिनट का क्वेश्चन भी आपसे 2.5 मिनट में हो रहा है, तो भी गलत बात है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो मैंने एब्सोल्युटली। इस पे ऑप्टिमाइज किया था कि मेरे को सिर्फ मेरे को 75 लाना है, तो मेरे को 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 68 में से, मतलब मेरे को मेजोरिटी पेपर छोड़ना है। सो आई नीड टू नो व्हाट आई हैव टू लीव मोर देन व्हाट आई वांट टू अटेम्प्ट। इनफैक्ट बहुत ही करेक्ट बात बोली है मन। इन अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से लास्ट कपल ऑफ मंथ्स वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जो एमबीए लिटमस चैनल पे हमने शेयर किया। उसका प्राइमरी रीजन यही था कि बहुत सारे लोग जो तैयारी शुरू कर रहे हैं वो ये सोच के शुरू कर रहे हैं कि 99.99 लाना है। वही नहीं होता सबसे करेक्ट। होता। और रियलिटी भी नहीं है। मतलब हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल लेट्स से मान लो कि 99.99 टारगेट करके चलना ठीक है। बट आप एक एस्टिमेट लगा लो ना एग्जाम में जाके। आप अगर ओवर अटेम्प्ट करके आ रहे हो और नेगेटिव लेके आ रहे हो हम्म। तो फिर फायदा नहीं है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप अपना सबसे पहले तो मैं सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कनेक्ट करिए। आप यू कैन कनेक्ट विद हेमंत इफ यू वांट, वी कैन ऑल्सो कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट विद मी। In fact, this Sunday we are doing a profile evaluation workshop also, absolutely free for everybody. आप वहां पे आ सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। आप कैट 25 के लिए कर रहे हैं, 26 के लिए कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल पहले डिस्कस कर लो कि मेरे लिए क्या सूटेबल टारगेट होना चाहिए, कितना नंबर लेके मेरे को दिमाग में चलना है। उससे ज्यादा आ गया तो बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा है। लेकिन टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को 200 नंबर लाने हैं। वो हमेशा आपको अंडर प्रेशर रखेगा। और आपका वो प्रेशर है ना वो आपका खेल खराब कर देता है एग्जाम में। इफ यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, एंजाइटी इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि भाई ऐसे दिखने लगता है कि सपना टूट रहा है, एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उधर दिख रहा है कि फरारी निकल गया हाथ से, फिर लैम्बोर्गिनी निकल गया। ठीक है, तो वो प्रेशर सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर नहीं करना है, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के चलना है। एंड सबसे पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तैयारी शुरू कर रहे हो, एक बार समझ लो कि मेरे प्रोफाइल के हिसाब से क्या एक अप्रोप्रिएट टारगेट हो सकता है एंड मुझे किस तरीके से उसको प्लान करके एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो वो प्लानिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और इस चीज में मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे पर्सनल कॉल्स आते हैं, मैं टॉकमेट पे कॉल लेता हूँ। तो आज के दिन बंदा 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है क्यूए में, और उसको जाना है 9 क्वेश्चन तक। मैं बोलता हूँ भाई, वो मेरे को बोलता है मेरे से क्यूए नहीं हो रहा। मैं बोलता हूँ 150 दिन है तेरे पास, और तेरे को जो 9 क्वेश्चंस का मार्क छूना है वो तेरे को आज नहीं, नवंबर में छूना है। तू करेक्ट। नवंबर में छू, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैट से पहले होना चाहिए ना। करेक्ट। आज छू के क्या करेगा? फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अभी तू 3 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, 6 क्वेश्चन तेरे को और करेक्ट करना है। तेरे पास 5 महीने हैं। 1 महीना अगर तू ढंग से पढ़े, तो क्या तू 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर सकता?
करेक्ट। सडनली उनका माइंड बोलता है अरे हाँ ये तो कर सकता हूँ। तो बिकॉज दे हैव नॉट ब्रोकन इट डाउन इनटू स्मॉल पैकेट्स, दे थिंक कि यार मेरे को आज ही चाहिए 70 मार्क्स। बट मेरा क्लियर था, मैंने जब शुरू किया था, आप सोचिए मेरा 2 ईयर का गैप था, मैंने अपना थर्ड अटेम्प्ट दिया, मैंने जो फर्स्ट मॉक दिया उसमें मेरे 27 मार्क्स आए थे। कैन यू इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि भाई बंदा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा और 27 मार्क्स पहले मॉक पे ला रहा है। बट करेक्ट। मेरा एम था कि भाई मेरे को 70 तक पहुंचना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 27 से 40 गया, ठीक है, 40 से 50 गया, 60 गया, 70 गया, 70 में कंसिस्टेंट हुआ। वो मेरा एम था। अब मेरे को वो नवंबर में हो रहा है, दिक्कत नहीं है। आज करेक्ट। भी हो रहा है तो अच्छा बात है, बट नवंबर तक। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हेमंत, मैंने ना एक एनालिसिस शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ में, एंड दैट वाज के, सो दिस वाज आई थिंक लास्ट वीक ओनली आई हैड शेयर्ड अ वीडियो ऑन ऑन द लिटमस चैनल। तो वहां पे मैंने ना एक ही चीज, मैंने एक सिंपल चीज बताया था कि 24 का मैंने पेपर उठा लिया। ठीक है। और ये मैं सब लोगों को, सारे व्यूअर्स को बोलूंगा कि आप भी ये ट्राई करके देख लेना। आप चाहे 24 का पेपर उठाओ, 23 का पेपर उठाओ, 22 का, 21 का, 20 का, आप सिर्फ अरिथमेटिक से 95 क्रॉस कर सकते हो, सिर्फ आराम, आराम से। आपको 95% क्रॉस करना है, सिर्फ अरिथमेटिक से हो जाए। एक टॉपिक तो अच्छे से करो। आप अच्छे बी स्कूल में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर एक टॉपिक भी बराबर आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम डिजर्व करते हैं उस चीज को? तो आई थिंक सबसे पहले तो अपने आप के साथ शर्त लगाओ कि यार एक टॉपिक ना अरिथमेटिक ही सही है, उसको मैं ऐसा धो दूंगा ना। और बेसिकली मुझे बात बताओ हेमंत, हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार 130 दिन में, 130 दिन में एक टॉपिक करना है अरिथमेटिक। चलो उससे ज्यादा अगर अरिथमेटिक अलजेब्रा हो गया तो बोनस। वही। लेकिन अगर तुम मान ले कौन सा बहुत वीक है, तो भाई अरिथमेटिक बहुत अच्छे से कर दो। तुम्हारे फॉर एग्जांपल यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसके अंदर बहुत सिंपल है कि भाई 8-9 क्वेश्चन तुम खाली अरिथमेटिक से सॉल्व कर सकते हो, और बहुत इजीली 20 मिनट में। 40 मिनट का तेरा पेपर होता है क्वांट्स का, तुम 20 मिनट वेस्ट कर दिया ना, तो भी तुम 95, 96, 97, 98 ले आएगा। सो आईड रिकमेंड कि अगर तुमको लगता है तुम बहुत वीक है, सिर्फ अरिथमेटिक पहले अच्छे से करो, उसके बाद बिल्ड करो जो तुमको ठीक लगता है कि अरे हाँ मेरे को अलजेब्रा खराब लगता है, नहीं करूंगा मैं ज्योमेट्री कर लेता हूँ चलो, मैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम कर लेता हूँ चलो। करेक्ट, उस तरीके से बिल्ड करो, पर एक टॉपिक को एकदम ऐसा धो डालो ना कि वो टॉपिक मतलब तुम एकदम डेमी गॉड लेवल पहुंच गया। मेरे को अरिथमेटिक किंग बोलते थे अपने प्रिपरेशन की टाइम, क्योंकि मेरे को एब्सोल्युटली। पता था मेरे को 2 ही टॉपिक करने हैं, तो अच्छे से करता हूँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है। और लोग हमेशा इस प्रेशर में रहते हैं कि मेरे को सब कंप्लीट करना है, बट जब वो रियलाइज करते हैं कि नहीं भाई तुमको सब कंप्लीट नहीं करना, तो ट्रू लिबरेशन आता है। अब अगर आप किसी को बोलो भाई तुमको 75 मार्क्स लाने हैं, ओवरवेलमिंग लगेगा। लेकिन आप उसको बोलोगे 25 क्वेश्चन चाहिए 68 में से, तो उसको अंडरवेलमिंग है, ठीक है भाई। तो द थिंग करेक्ट। इज पीपल आर नॉट पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, people are not putting things into numbers, and I think that is where the gap is. People are करेक्ट। also, the one thing that I want to address here, and I want you to address here as well, as a teacher, I'm sure a lot of students reach out to you कि सर इसका तो इतना मार्क्स आ रहा है, इसका ये इतना ला रहा है, मैं इसके साथ ही शुरू किया था फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी शुरू किया हूँ, मैं इसके साथ कब कैच अप करूंगा। एंड एट दैट टाइम आप उनको जितना भी समझा लो, आप डेटा दे दो कि भाई इतना तुमको चाहिए। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत लोग मेरे से पहले शुरू किए होंगे फिर भी मैंने उनसे ज्यादा लाया। तो दैट डज नॉट रियली मैटर अनलेस यू आर डूइंग गुड प्रेप। बट एज अ स्टूडेंट वो समझते नहीं है, तो आप उनको किस तरह से कन्विंस करते हो? सो हेमंत, मैं डेटा से कन्विंस करता हूँ। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टूडेंट्स मेरे साथ पर्सनली भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। तो स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा आता रहता है, वैसे तो एक बैकएंड से एनालिटिक्स आता है उनके मॉक स्कोर्स का, ठीक है। हम्म। बट स्टूडेंट्स भी अपने एंड से बना के मेरे साथ शेयर करते हैं कि मेरा फॉर एग्जांपल लेट्स से कैसा चल रहा है मेरा मॉक, ठीक है। और ये चीज मुझे लगता है कि एक एक मेरे पास भी इनपुट्स आता रहता है कि अच्छा किस तरीके से लोगों का परफॉर्मेंस रहा। मुझे मालूम है कि ये वाला मॉक स्लाइटली डिफिकल्ट था, या ये वाला मॉक रिलेटिवली इजी था। बट उनका जब इनपुट आता है ना, तो मेरे को फॉर एग्जांपल लेट्स से, जब जैसे लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आई डू नॉट नो वेदर यू आर एबल टू सी दिस और नॉट। ब्राइटनेस कम करोगे तो दिखेगा। इज दिस विजिबल? मे बी हाँ। थोड़ा बहुत विजिबल होगा। नहीं, आप बता दीजिए। सो प्रॉब्ली। बेसिकली इसके अंदर मेरे पास तो मैसेजेस आ जाते हैं कि मेरा इस तरीके से स्कोर या मॉक परफॉर्मेंस चल रहा है।
ठीक है। हम्म। अह, हर एक स्टूडेंट को एक सेल्फ एनालिसिस फ्रेमवर्क भी शेयर किया है, जिसमें वो अपने लेवल पे अपने मॉक्स को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है। और उसको फिर जब हम बैठते हैं, एक 3 घंटे का मॉक एनालिसिस करते हैं लाइव, तो उसमें उन क्वेश्चंस को, उन क्वेरीज को कैटर करते हैं। स्टूडेंट्स को मैं बस यही बोलता हूँ भाई, कि तुम ये देख लो, फॉर एग्जाम्पल इसका स्कोर ज्यादा है, उसका स्कोर ज्यादा है, मैं तुमको उसका स्कोर शेयर कर देता हूँ, उसका ट्रेजेक्ट्री देखो, उसका आज का स्कोर मत देखो। तुम ये मत देखो कि आज वो क्या कर रहा है, तुम ये देखो कि उसका पहले 10 नंबर भी आया था, तुम बट ये देखो कि जिसका उसका स्कोर 22 नंबर भी वो आया था। क्या होगा? है मान ना? लीजिए, जैसे आप ये डेटा तो शेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट रैंडमली रोते धोते आ गया कि भैया मेरा तो एकदम हालत खराब है, ये आईएमएस में लोग 90 99 ला रहे हैं, मैं तो 70 पे अटका हुआ हूँ, मेरे से नहीं होगा भैया। अब आप क्या करोगे? देखो, हिम्मत, सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मॉक्स हैं। ठीक है, एक मॉक पकड़ ले। ठीक है, एक मॉक पकड़ ले, वो मॉक ले ले, वो मैक्स जो फॉर एग्जांपल एक एक तो हमने स्टैंडर्ड फ्री मॉक्स रखे हैं। वो फ्री मॉक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही प्रिलिमिनरी एनालिसिस है। हम्म। ठीक है, वो ले ले। और बेसिकली उसके अंदर जो स्कोर्स आएंगे, और स्कोर से ज्यादा जो एनालिटिक्स आएगा, उसके बेसिस पे आई विल गिव यू पॉइंटर्स। देख, मेरा काम है प्रैक्टिकली चीजों को इवेलुएट करना, और उसके ऊपर कुछ एक्शनेबल इंसाइट्स जनरेट करना। ठीक है। तो आई वुड, बट इफ अगर तुम मेरे पास रोते रोते आ गया, तो मैं ऑब्वियसली तुमको पहले चुप चुप कराऊंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आई शेयर यू अ कपल ऑफ मॉक्स। ठीक है, पीपल हु आर वाचिंग दिस कैन सॉर्ट ऑफ टेक दैट, एंड इफ दे वांट कि हाँ एक बार मैं कनेक्ट करूं और डिस्कस कर लूं, वो भी कर सकते हैं। प्राइमरी एलिमेंट इज अंडरस्टैंड इट। वो तुमको एक प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा है, उसको मोटिवेशन डिमोटिवेशन की तरह मत लो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से बीमार हो गया, उसके बाद डिप्रेस भी हो गया कि मैं बीमार हूं। अरे भाई, बीमार है तो इलाज करवाओ। सिंपल बात है ना। हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लेते जाते हैं कि कभी ना कभी तो अच्छा आएगा। अरे गैम्बल नहीं है। ठीक है, तुमको अगर मॉक में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रही है, तो तुम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। एंड सही। कनेक्ट करो मेंटोर्स के साथ में, कनेक्ट करो सीनियर्स के साथ में, पीपल लाइक यू हु कैन गिव देम इनसाइट्स, पीपल हु कैन गिव देम इनपुट्स। कि हाँ भाई देख, ये परेशानी मुझे भी आई थी। अब जैसे मेरे केस में होता है, तो ऐसा नहीं कि सारी परेशानी मुझे ही आ जाएगी, लेकिन देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन, आई हैव बीन पार्ट ऑफ देयर जर्नीज। तो किसी ना किसी के केस में जब ऐसी दिक्कतें पहले आई होती हैं, उनकी लर्निंग से भी हम फॉर एग्जाम्पल सामने वाले को हेल्प कर पाते हैं। एकदम। मैं ये भी बोलता हूँ बहुत लोगों को, एंड देयर इज जस्ट वन लाइन दैट आई से, कि mocks are not a test of how ready you are. Mocks are mocks are making you ready for the exam. एब्सोल्युटली। क्योंकि आपको नहीं पता जो क्वेश्चन यहाँ आ रहा है वही कैट में आएंगे। अगर मॉक्स ऐसा होता जो आपको गारंटी करता कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो कैट में आने वाले हैं ऐसे ही, तब आप समझ सकते हो कि भाई नहीं हो रहा। बट आपको पता ही नहीं कैट में क्या आएगा। दिस इज जस्ट अ टेस्ट कि हाँ भाई देखो आप किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करते हो जब चीजें डिफिकल्ट हो, आप प्रेशर में टूट रहे हो कि नहीं, आप अपना कंपोजर कैसे रख रहे हो, एंड करेक्ट। आप 2 घंटे बैठ पा रहे हो कि नहीं। इट्स एब्सोल्युटली। नॉट कि भाई आपको कितना आता है। करेक्ट। नहीं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं एक सेंटेंस है जो मैं कई स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ। वो ये है ना कि देख, अगर तेरे पास लाखों रुपए हैं, तो तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो। लेकिन अगर तेरे पास मान ले लिमिटेड है 10,000 रुपए, तो भी तुम घर चलाओगे ना। तो हाँ। तुम्हारी लर्निंग अगर लिमिटेड भी है, तो भी तुम मॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो कर सकते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ही नहीं कर पा रहे हो तुम मॉक में। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो जी। अपने आप को कंपोज करना, 2 घंटे फोकस के साथ बैठना, तीनों सेक्शंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट करना, कोशिश ये करना कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। उसके अलावा मैंने आइडेंटिफाई किए कि भाई ये कौन से इजी क्वेश्चंस है, कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। अगर तुमने जो आइडेंटिफाई किया इजी है, वही क्वेश्चन इजी निकला, तो तुम इट्स अ अपने आप विन। को ट्रीट करो भाई, इररेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा स्कोर। It's a win, 100%. I think the only reason why I succeeded for in the last time is because I got an eye कि भाई मैं इजी मीडियम और हार्ड क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मैं आज भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली exactly. वो बहुत मैटर करता है।
बेसिकली देखो, सारे क्वेश्चंस तुम्हें नहीं सॉल्व करने होते हैं। जो जो इंसान 40% भी कर देता है वो भी 99 बहुत इजीली क्रॉस कर देता है। सो 40% भी ज्यादा ही है। बट पॉइंट इज कि अगर तुम फॉर एग्जांपल लेट्स से सही तरीके से इजियर क्वेश्चंस या इजियर सेट आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो तुम्हारा खेल बहुत आसान हो जाता है। डीआईएलआर के अंदर भी आप यही एक्सपीरियंस करेंगे कि ना, एक होता नहीं है तो एक भी सेट नहीं होता है, हो रहा होता है तो दो दो होने लगता है। जनरल ट्रांजेक्शन इन डीआईएलआर इज कि लोग जीरो जीरो सेट सॉल्व कर रहे हैं, फिर थोड़े से ही टाइम इंटरवल में दो दो सेट सॉल्व करने लग जाते हैं। तो अगर आप डीएलआर में अभी एक भी सेट सॉल्व नहीं कर रहे हो, एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा और फाइट मारो, थोड़ा प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करो, तुम जीरो से दो सेट्स पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। बस सही तरीके से करो, सही सेट्स आइडेंटिफाई करो, और सेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैंने टेबल दिखाया है उससे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना शुरू करो और एक्सपोजर बिल्ड करो अक्रॉस तुम्हारा डीआईएलआर टॉपिक्स। और मैंने इस पे एक वीडियो भी डाला है कि कैसे आप एग्जैक्टली exactly समझ सकते हो, लाइक द फ्यू पैरामीटर्स जैसे। चलो वीडियो डाला है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप लेंथ का सेट, सेट ऑफ द लेंथ, अरे लेंथ देखो लेंथ सेट ऑफ द का। सेट। हाँ। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, अगर वो टीटा क्वेश्चन है तो समझो कि मोस्ट प्रोबेबली उसका एक ही आंसर आने वाला है, अगर चार पांच में से तीन टीटा है। बट अगर आपका बार बार इफ क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब आपको रीवर्क करना पड़ेगा चीज। आपका उस टॉपिक के साथ कितना ज्यादा फेमिलैरिटी है, आपका उस टॉपिक के साथ कितना ज्यादा वो है, कंफर्ट है। ठीक है। और इज इट लाइक द बेस्ट सेट टू पिकअप राइट नाउ। आप जब इन पांचों चीज को देखते हो फिर एक रैंकिंग लगाओ। एंड वंस यू पुट दैट रैंकिंग, then once you have ranked all your sets, then pick up the one which is rank one according to you। एंड फिर उसमें कट ऑफ टाइम दो कि भाई 6 मिनट के अंदर अगर मेरे को लग रहा है कि मैं इस सेट में कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, हाउएवर इजी इट इज, आई जस्ट लीव इट। बिकॉज इफ यू एब्सोल्युटली। आर स्टक देयर, 6 का 10 मिनट होगा, 10 मिनट होती है आप सोचोगे यार इसमें 10 मिनट दे दिया तो 5 मिनट और देते हैं, 15 मिनट होते ही सोचोगे और 5 मिनट देते हैं, कभी 20 मिनट खत्म हो गए, फिर आप एकदम पैनिक खत्म। एग्जैक्टली exactly। मैं एक ना सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आई थिंक हिम्मत ने बड़ी अच्छी बात कही। हिम्मत, आई एम होपिंग माई स्क्रीन इज विजिबल फॉर ऑल द व्यूअर्स। एक बहुत सिंपल चीज देखो भाई, लेट मी शो यू समथिंग। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। ठीक है। इट इज नोन दैट पी इज, पांच लोग हैं। एक तो ये हेवियर के बारे में दे रहा है, तो वो वेट, वेट का एसोसिएशन एक वेरिएबल हो गया वेट। शॉर्टर मतलब हाइट वाला एसोसिएशन हो गया, करेक्ट। उसके बाद रिचर बोल रहा है मतलब वेल्थ वाला, और यंगर बोल रहा है तो एज वाला। चार वेरिएबल्स हो गए, पांच लोग और चार वेरिएबल्स, तो टोटल पांच वेरिएबल्स आपका यहीं पे आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सारे के सारे जो इनपुट्स भी हैं वो डायरेक्ट इनपुट्स नहीं है। डायरेक्ट इनपुट देखो बस इतना ही है कि टी इज थर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट। ठीक है। तो ये एक्चुअली फॉर एग्जांपल एमबीए लिटमस के ही एक बूस्टर का क्वेश्चन है। तो टी इज थर्ड इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया हुआ है। तो अब देखो, समझने वाली बात ये है इस क्वेश्चन में कि आपके पास पांच वेरिएबल्स हैं, और गौर से देखोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट जीरो डायरेक्ट इन्फो है। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत अब टाइम। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने पहले उठा लिया कैट में, खत्म है। तो तुम्हारा गेम हो चुका है, बहुत सिंपल है। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कितने लोग हैं जो चैनल पे जुड़े हुए हैं, कमेंट करके हमको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताइए। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप डीएलआर में जरूर अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट वी वांटेड टू गिव। आप ट्राई कर लेना ये वाला क्वेश्चन। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, परेशान मत होना अगर ये सेट में टाइम लगता है, बिकॉज ये लगेगा। और ये चीजें अपने को पहले से पकड़ना जरूरी है ना। हाँ सही सेट उठाना आपका काम बहुत आसान कर देता है। सही बात है। जैसे इसमें टेबल बनता है और मैं भी वो वेरिएबल्स देखता था कि कितने वेरिएबल्स है जिसपे मेरे को प्ले करना है। अगर करेक्ट। दो वेरिएबल है कि भाई मान लो बंदा है और फ्लोर है, तो ठीक है, मैं उसको ले सकता हूँ। अभी बंदा हो गया, फ्लोर हो गया, उसका राउंड में सीटिंग हो गया, तीन वेरिएबल आ गए तो ऐसी, अरे भाई अब मैं दो चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट। इट सडनली बिकम्स टफर। करेक्ट। पुश हो जाता है बाद में कि ठीक है इसको बाद में करेंगे। करेक्ट। तो बेसिकली आपके अगर वेरिएबल्स आपके तीन से ज्यादा हो गए, या फिर अगर लेट्स से आपके पास डायरेक्ट इन्फो नहीं है उस क्वेश्चन में, ज्यादा क्वेश्चन में इनडायरेक्ट इन्फो दिया हुआ है कि ए कैन नॉट बी सीटेड बिटवीन बी एंड डी। अब इससे मुझे कोई बेसिकली पॉजिटिवली मुझे कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं चला। मैंने एक केस को निगेट किया, पॉसिबिलिटीज अभी भी n-1 ही रही।
करेक्ट। सो अच्छा। द पॉइंट इज कि मुझे जहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स या डायरेक्ट इन्फो नहीं है, वो ऑब्वियसली मेरे रेडार में या प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नहीं आना चाहिए। तो यही चीजें अपने को प्रैक्टिस के दौरान पकड़नी है। सेट सिलेक्शन के अंदर यही चीजें हेल्प करती आई थिंक DLR इज 80% set हैं। selection. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। 10% knowing that if you leave the set in 6 minutes it's not a problem. मतलब अगर आपने खुद के लिए टाइम नहीं लगाया कट ऑफ, यू आर लाइक अगर मैंने पिकअप कर लिया तो मैं सॉल्व करके ही छोड़ूंगा, तब तो बहुत यही चाहिए एग्जामिनर को एक्चुअली, कि आप उठाओ वो ट्रिकी सेट जो आपको लग रहा है इजी है और उस पर बर्बाद कर दो अपना टाइम। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट देखो, स्क्रीनिंग का ये बहुत सिंपल तरीका है। हाँ ठीक। हाँ, डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग, एब्सोल्युटली। कि आपको ये भी शो करना है, आपको सिर्फ ये नहीं शो करना कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको ये भी शो करना है कि आप समझदार हो। यस। आप चीजों को समझते हो, आप सिचुएशन को समझते हो। कभी कभी सिचुएशन से भागना भी सही सोल्यूशन होता है। एकदम 100%, ये लाइन तो मैं यूज करूंगा हर जगह। करेक्ट। तो भाग जाना चाहिए, है ना, कभी कभी। सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। And also let's talk a bit about VRC because that was a section जो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा लोगों को बताता नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद भी उसमें उतना अच्छा कर नहीं पाया था। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज की है, पीपल डोंट गिव ड्यू अटेंशन टू VA, बट वो 1/3 ऑफ योर VARC का वो है। सो what is your view on this and how and a person go to do better in VARC? सो हेमंत, आई बिलीव कि वीएआरसी के अंदर, मतलब मेरा व्यू ये रहेगा, वीए अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो आरसीज के ऊपर मेजर फोकस रखो। 2/3 ऑफ द पेपर है। और अगर बेसिकली आरसीज को सही करे बिना वीए के लेवल पे वीएआरसी निकालना थोड़ा कठिन काम है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम्म आपको सिंपल, मेरा थॉट प्रोसेस रहता है वीएआरसी के अंदर, एक तो मैंने आपको बताया कि आपको रीडिंग कैसे करनी चाहिए। उसके हम्म। अलावा आपको आरसी सॉल्व करने, जो मैंने जॉनर शेयर किया है उसके अलोंग आप आरसी शेयर करो, सॉल्व करो, बिकॉज उसी टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा आपको कैट में देखने को मिलेंगे। जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो, जब आप मॉक्स के अंदर भी जाओगे तो आप रियलाइज करोगे कि वीएआरसी के अंदर ना हमारा टाइम डेडिकेशन बहुत बराबर नहीं रहता है, या वी डू नॉट हैव अ ये कंसिस्टेंट बात। टाइम। सो बेसिक यू शुड ट्रीट वीए एंड आरसी एज टू डिफरेंट पेपर्स। आपका एक ही सेक्शन है, लेकिन वीए और आरसी को अलग अलग ट्रीट करना जरूरी है। आप क्या करते हैं ना कि वीए का पूरा टाइम खा जाते हैं। देखो, इजी क्वेश्चंस दोनों में होंगे, यस। वीए में भी होगा और आरसी में भी होगा। तो अगर तुम वीए का टाइम पूरा का पूरा आरसी को दे दोगे ना, तो तुम वीए वाले टाइम में आरसी के डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तुम्हें यस। उन दोनों का टाइम अलग अलग रख के दोनों के इजियर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके अंदर भी आरसीज के अंदर मैं बोलूंगा कि आप फॉर एग्जांपल अगेन सेट सिलेक्शन से स्टार्ट करो। आपको चारों सेट स्टार्ट में करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल 3 सेट कर सकते हो, 2 सेट कर सकते हो, वो करो। आप इनिशियली जब फॉर एग्जांपल सेक्शनल टेस्ट या मॉक टेस्ट ले रहे हो, तो 25 मिनट और 15 मिनट का डिवाइड रखो, या 26 मिनट 14 मिनट का डिवाइड रखो, या 27 मिनट 13 मिनट का डिवाइड रखो, या 28 मिनट 12 मिनट का डिवाइड रखो। ये बहुत सारे टॉपर्स का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड रखना है, आपको अटेम्प्ट करने ही है वीए। वीए छोड़ नहीं देना है बिल्कुल, कि एकदम ही छोड़ दिया, हटाओ यार इसको देखेंगे ही, वैसे नहीं। आप 2 आरसीज या 3 आरसीज पहले अटेम्प्ट करो, और एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कैट में ना गेम चेंजर बनता है, वो है नॉर्मलाइजेशन। कितने लोगों ने सुना है, वो हमें जरूर कमेंट में बताइए। और नॉर्मलाइजेशन जो है ना, वो उनको ज्यादा हिट करता है ना जो एक्यूरेसी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, जो अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगर तुमको चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन का फेवर तुमको मिले, ठीक है, लोग बोलते रहें कि ये वाला सेट इजी, ये वाला स्लॉट 1 इजी था, स्लॉट 2 डिफिकल्ट था, स्लॉट 3, बेसिकली वो तुम्हारे एक्यूरेसी के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर तेरा एक्यूरेसी खराब है, तो तुमको नॉर्मलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी के ऊपर स्टार्ट से फोकस रखो। आरसीज में अगर मान लो 3 आरसी कर रहे हो, 12 क्वेश्चंस, स्पीड बढ़ाओ, रीडिंग स्पीड। अगर रीडिंग स्पीड तुम बढ़ाएगा नहीं, तो डेस्परेट अटेम्प्ट्स होंगे तुम्हारे। 12 क्वेश्चंस होंगे अगर 3 आरसीज तुमने करे, अगर तुमने दो ही किया तो तुम 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। फिर प्रेशर तुम्हारे ऊपर ये रहेगा कि सारा तुमको करेक्ट करना है, बिकॉज 8 ही क्वेश्चन कर रहा है और सारा का सारा करेक्ट नहीं मारेगा तो दिक्कत हो जाएगी। उससे बेटर ये है
कि तुम 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 3 आरसीज में, और उसमें से 9 क्वेश्चन ठीक कर दो या 8 क्वेश्चन ठीक कर दो। उसमें तुम्हारे ठीक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बिकॉज एवरी आरसी विल हैव सम मॉडरेट सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए। एंड वीए के अंदर भी एक चीज मैं बोलूंगा कि स्टार्ट से थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करो। तुम्हारा पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये 4 मेजर वैरायटीज तुम्हारे होते हैं। उसके अंदर डेली तुम फॉर एग्जांपल अगर 5 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा है विद इन अ मंथ, 1 महीने में तुम्हारा इतना बन जाएगा कि हर एक वैरायटी में तुम एक एक क्वेश्चन कम से कम ठीक कर पाएगा। 4 क्वेश्चन तुम्हारा वहां से निकल गया, 8 क्वेश्चन तुम्हारे 3 आरसीज में से 8 क्वेश्चन निकल गए, तो 8 और 4 12 हो गया। तुम्हारे 12 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करे, मतलब 36 नंबर का अटेम्प्ट है तुम्हारा। अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक आ गया ना, तो भी तुम 22 25 27 इस लेवल तक आराम से जा स्टेबल सकते। स्कोर है। ठीक है। आई थिंक आई वांट टू ऐड समथिंग हियर इज, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका एक्यूरेसी ठीक हो ही नहीं रहा था। मतलब मैंने सारे पैतरे आजमा दिए थे। तो एक सिंपल अगेन अपना एनालिटिकल माइंड दौड़ाया कि द मार्क्स दैट यू गेट इज अ फंक्शन ऑफ अटेम्प्ट इनटू एक्यूरेसी। if your accuracy is down, you have to pick up your attempts. That there is no other way, because if your accuracy is down and attempt is also down, तब तो आप 100% गए। करेक्ट। और मैं अपने ऊपर बैठ लिया, मेरा 55% से ज्यादा एक्यूरेसी जाता ही नहीं था मॉक्स में। तो मैंने सिर्फ एक आरसी छोड़ना शुरू किया, और मैं बाकी सब अटेम्प्ट करूंगा नो मैटर व्हाट। तो अगर मेरे को पता चल गया कि भाई ये आरसी मेरे को नहीं करना है, तब तो मेरे लिए बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का है। एंड वही सेम चीज मैंने कैट में किया। मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे 9 रॉन्ग हुए, फिर भी मैं 23 मार्क्स ले आया, जस्ट बिकॉज आई न्यू कि मेरा एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है। उस दिन ऐसा होता, अगर मेरा एक्यूरेसी गलती से भी 65 तक पहुंच जाता, उस दिन अगर कोई सुपर पावर मेरे साथ होता, तो मैं तो एकदम धरती फाड़ देता कि भाई जी 20 बिल्कुल बिल्कुल। और भाई। इनफैक्ट हेमंत, ये काफी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है कि भाई फॉर एग्जांपल आप 3 आरसीज पकड़ो, बाकी आप वीए पकड़ो, और 3 आरसीज के अंदर भी सारे अटेम्प्ट मत करो। कोशिश करो कि भाई फॉर एग्जांपल जो आपको ठीक लग रहा है ना वो अटेम्प्ट कर लो, 8 9 क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट कर लो, और बीए से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो 13 14 अटेम्प्ट हो गए। उतना बहुत है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से बीआरसी में आप लेट्स से 13 14 अटेम्प्ट करो अच्छे से, मतलब गुड अटेम्प्ट्स। ठीक है ना। डेस्परेट अटेम्प्ट से बचना है बीआरसी में। डेस्परेट अटेम्प्ट कि भाई पूरे पूरा 40 मिनट लगा के 2 आरसी पढ़ा है, तो अब तुमको 8 क्वेश्चन मारना ही पड़ेगा ना। तुम्हारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोई और है ही नहीं। तो तुमको है। 24 नंबर लाने की लालच में तुम सारा क्वेश्चन मार्क करोगे, और उसमें से 5 गलत हो जाएगा, तो 3 × 3 9 नंबर मिलेगा, और 5 गलत हो गया उसमें से, तो सिंगल डिजिट में स्कोर बन जाएगा। तो ये आपका वीआरसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्पीड बढ़ाओ, रीडिंग डेली करो। एक्यूरेसी तभी बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है इंसान? क्योंकि मैंने लास्ट तक ये चीज फेस किया कि मेरा एक्यूरेसी नहीं बढ़ा। आपके हिसाब से एक्यूरेसी एक्यूरेसी बढ़ाने का क्या? एक्यूरेसी के लिए देखो हेमंत, माई सिंपल टेक ऑन एक्यूरेसी इज कि एक्यूरेसी सबका हिट होता है। अगेन, तुम कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, तुमको अटेम्प्ट करते ही मालूम है कि चांसेस है कि ये गलत होगा, लेकिन फिर भी हमको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। क्यों? True. क्योंकि हमने उतने क्वेश्चन, हमारा हमारा क्या है, विड्थ ही नहीं कवर हुआ पेपर में। तो जनरली जो चारों सेट जिनका स्पीड अच्छा है ना पेपर में, इसीलिए कितना इतना रीडिंग के ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों डालते हैं, ताकि तुम्हारा स्पीड बढ़िया हो। अगर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड बहुत अच्छा है ना, तो वो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज तुम पूरा का पूरा विड्थ कवर कर लिया। देन यू हैव अ चॉइस वेदर यू वांट टू मार्क एन आंसर और नॉट। अब सोचो, जो इंसान 2 ही आरसी करा है उसके पास चॉइस नहीं है, उसको मार्क करना ही है, और उसकी गलती होगी। और 8 के 8 क्वेश्चंस ठीक करना कैट में, अगर 2 ही आरसी किया है, बहुत डिफिकल्ट है, इवन फॉर अ फैकल्टी। अगर हम्म। 2 आरसीज हैं और 8 क्वेश्चंस ठीक करने हैं ना, तो उसमें भी रिस्क बहुत ज्यादा है। तो जो 4 आरसीज लेके चलते हैं ना, जिनका स्पीड बढ़िया है, उनके चांसेस इसलिए इंप्रूव हो जाते हैं बिकॉज उसके पास ना 16 क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चन ठीक करने के लिए या 9 क्वेश्चन ठीक करने के लिए। आई तो थिंक जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है। बहुत है, तो वो बेसिकली क्या करेगा ना, वो जो जहां पे उसको कंफ्यूजन है ना, वो हाथ ही नहीं लगाएगा। तो मैं तो उल्टा स्पीड था, का मैं ये तो सब में हाथ लगा देता था, क्योंकि मेरे को एक्यूरेसी का प्रॉब्लम था। बट हाँ, ये मैं अग्री करता हूँ, बिकॉज मेरे पास इतना विच था। तो मेरे को पता था फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन आई एम गेटिंग, आई हैव द लिबर्टी टू गेट 3 क्वेश्चंस रॉन्ग। एंड अगर मेरा एक्यूरेसी 50% है, तो अगर मैं 2 क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ 4 में, तो आई एम ऑलवेज एट अ प्रॉफिट। करेक्ट। ऑलवेज। इनफैक्ट एक और पॉइंट बोलूंगा हेमंत, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि
मेमोरी के बेसिस पे आंसर करते हैं क्या, कि पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने में ही बहुत टाइम लगा दिया। देखो एक पैराग्राफ पढ़ने में आपको 2.5 से 3 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। 2.5 से 3 मिनट भी आपका मतलब अगर इससे ज्यादा आप लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हम्म। ये आपका मैक्स लिमिट है। अगर तुम 2.5 मिनट कर रहे हो, 2.5 मिनट ठीक है। इजियर है तो 2.25 मिनट में हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लो कि आप ना थोड़ा सा जल्दी पढ़ो एंड यू गो बैक टू दैट आरसी। यू डोंट यस। सॉल्व इट लाइक कि मैं पूरा पहले पूरा प्रॉपर समझूंगा, उसके बाद मैं जो भी मेरे सामने आएगा बस मैं टिक मारता जाऊंगा, वैसे नहीं होता है। आरसी सॉल्व करने के लिए अगर कोई फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन है, यू नीड टू गो बैक, यू नीड टू चेक दैट एंड देन यू हैव टू मार्क। तो मेमोरी के बेसिस पे मार्क करने से भी आंसर्स गलत होते हैं और एक्यूरेसी काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो मेमोरी बेस पे नहीं मार्क करना है, आपको आरसी तेजी से पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस के अंदर जाना है और क्वेश्चन से इनपुट लेके फिर आपको वेरीफाई करके आंसर करना है, ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन आई 100% एग्री। मेरा पहला फिल्टरिंग प्रोसेस ही था कि मेरे को पहला 2 मिनट में आरसी पढ़ के समझना है क्या ये आरसी वो आरसी है जो मेरे को समझ आ भी रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोग को मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई वो कैब में मत फोकस करो। पीपल थिंक कि उनको हर वर्ड का मतलब जानना है टू मेक सेंस ऑफ इट, बट करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट समझो। कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझ गए तो सब कुछ अलाइन हो जाएगा। और अगर एब्सोल्युटली। वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दो, फिर और क्या कर सकते हैं अगर वर्ड नहीं समझ। वोकैबलरी 100% तो हो ही नहीं सकता है। आप कितना आप वर्ड पावर मेड इजी भी याद कर लोगे पूरा का पूरा, तो भी कुछ वर्ड्स बच जाएंगे, ऐसे काफी वर्ड्स बच जाएंगे फॉर दैट मैटर जो आपने नहीं करे हुए हैं। सो द आइडिया इज यू हैव टू गेट द कॉन्टेक्स्ट। यही तो वर्बल एबिलिटी है, गेम यही है कि समझो बात को, ठीक है। वही अपना यही चीज बेसिकली बी स्कूल्स के अंदर भी जाके आपको केस स्टडीज समझना पड़ेगा। आप हर एक एलिमेंट नहीं समझ पाएंगे उसके अंदर, बट यू हैव टू गेट द कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू यूज योर ब्रेन कॉमन सेंस एंड मेक सेंस ऑफ इट। सेम चीज यहाँ पे भी है। आप पूरा का पूरा एंड टू एंड कभी नहीं समझ सकते। तो ये सही। सोच के मत चलो कि मैं पूरा 100% कॉम्प्रिहेंशन करके ही क्वेश्चन में जाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। 60-70% आपको कॉम्प्रिहेंशन मिल जा रहा है, बहुत अच्छे। क्वेश्चंस में जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर वापस आइए। एंड एक चीज मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, आप भी यूट्यूब पे हैं, मैं भी यूट्यूब पे हूँ, ठीक है। एंड बहुत लोग अब यूट्यूब पे आ चुके हैं। एंड लिटरली मेरे को कुछ लोगों ने भेजा है, आप मानोगे नहीं, वीडियोस भेजा है जिसमें जिनका वीआरसी में 99। अब जैसे आप मान लीजिए आप पहले से ही बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, यू आर अ वोराशियस रीडर, तो आपने 2.5-3 मिनट का लिमिट अपने लिए सेट कर लिया। बट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, आई एम नॉट अ गुड रीडर, मेरे को 5-6 मिनट लग जाएंगे। अब भाई बंदों ने बोल रखा है कि भाई तुम लोग जून में भी शुरू किया तो वर्ड पावर मेड इजी खत्म करो। एंड आई एम लाइक नो, टच भी मत करना उसको। यू विल जस्ट गेट अवे वो कैब में जो इंपॉर्टेंट चीजें उस पर ध्यान लगा। व्हाट करेक्ट। डू यू रिकमेंड एज अ टीचर, डू यू थिंक इट्स एब्सोल्युटली। वर्ड नहीं नहीं, पावर में होना चाहिए? आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू हेमंत। आई थिंक वर्ड पावर मेड इजी मैंने खुद अपनी लाइफ में कभी नहीं कंप्लीट किया। मैं 2-3 बार वर्ड पावर मेड इजी पे सोया हूँ, ठीक है, कि पढ़ते हुए सो गया मैं। ठीक है, मुझे वर्ड पावर मेड इजी से बोरिंग किताब, मैंने शायद ही कोई किताब देखी होगी वर्ड पावर मेड इजी से ज्यादा बोरिंग। ठीक है, तो मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है और बहुत नींद आती है। मैंने इनफैक्ट वर्ड्स भी जो सीखे हैं वो रीडिंग से ही सीखा है। कि हम्म। रीडिंग में जब इनिशियली रीडिंग करना चालू किया तो बहुत अटकता था। तो अटकता था तो फिर वर्ड मीनिंग देखता था, और उसके अंदर ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि रीडिंग करते हैं तो अटक जाते हैं, फिर वर्ड मीनिंग देखते हैं, है ना। तो वो चीज है, अगर आपके साथ हो रही है तो नॉर्मल है, घबराइए नहीं। इट्स समथिंग विच हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरीबडी हु स्टार्ट्स देयर प्रिपरेशन, करेक्ट। सो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट यू डू नॉट नीड टू लाइक मेमोराइज वर्ड पावर मेडिसी, आपको जरूरत नहीं है। आप अगर एम्पल रीडिंग डेली कर रहे हो ना, उसमें ही आपको ढेर सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, 10-15 वर्ड तो वहीं से मिल जाएंगे। आपने कोई वर्ड है उसका कंटेक्चुअल मीनिंग समझ लिया फॉर द टाइम भी, लेकिन पढ़ने के बाद उसको देख जरूर लो कि ये वर्ड क्या था, ठीक है, हम्म। क्या था। वो मैं करता था, कंटेक्चुअल मीनिंग समझ लिया, उस पॉइंट इन टाइम पे समझ नहीं आया कि क्या वर्ड है, लेकिन बाद में देख लिया कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हेमंत, हम ऐसा करते हैं कि जो हम डेली रीडिंग करते हैं ना, जो स्टूडेंट्स डेली रीडिंग करते हैं, उन सबके जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो भी उनको डिफिकल्ट लगा, उन सबको कोलेट कर लेते हैं। तो हम वर्ड पावर मेड इजी से चलते ही नहीं है। सो एट लिटमस भी हम वर्ड पावर मेड इजी से नहीं चलता है। मतलब मैं तो ऑनेस्टली वर्ड पावर मेड इजी कभी रिकमेंड नहीं करता। किसी को मैंने वर्ड पावर मेड इजी रिकमेंड नहीं किया है लाइफ तो कि मैंने वर्ड भी। पावर मेड इजी पढ़ो। ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं,
तुम वही वर्ड्स बेस जो तुम रीडिंग कर रहे हो ना, उसमें जो तुमको डिफिकल्ट वर्ड्स मिल गए, मान लो फॉर एग्जांपल 7 8 मिल गया, उसको तुम एक शीट में पॉपुलेट कर दो। वो शीट का एक्सेस सबके पास है। ठीक है, वो पीयर लर्निंग कैसे काम करता है, वो शीट का एक्सेस सबके पास है। अब जो मैं आज पढ़ रहा हूँ ना, जो वर्ड्स मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ ना, वो बाकी लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर ये भी है कि वर्ड है तुम्हारा, उसका मीनिंग है और उसका एप्लीकेशन इन अ सेंटेंस। तो उससे मेरे को समझ में आया कि वो वर्ड कैसे यूज करना है। तो उसको मतलब वर्ड को अगर सिर्फ वर्ड मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेंगे ना, तो हमारे लिए इट्स नॉट अ गुड इनफ ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मेरी वोकेबलरी में वो ऐड होगा, फ्यूचर में वो वर्ड मैं कभी यूज कर सकता हूँ, तो मुझे उसके लिए उसका मीनिंग भी समझना जरूरी है और उसका एप्लीकेशन भी समझना जरूरी है। तो वर्ड पावर मीड इज, एज आई टोल्ड यू, कि नॉट नेसेसरी। अगर आप अभी कर रहे हैं तो आई से रीडिंग करिए, वर्ड पावर मीड इजी करने की जरूरत है। एक चीज मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, मैं जनरली लड़कों को ही बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर आपको कोई अतरंगी वर्ड मिला है और आपको उसका मतलब याद रखना है, जस्ट यूज दैट वर्ड इन कॉन्वर्सेशंस विद अ गर्ल। इम्प्रेस हो जाएगी वो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ करो या जो भी जिसको भी इंटरेस्ट, क्योंकि लड़कियों को वो कैब अच्छा लगता है, वैसा अच्छा वो कैब को यूज करता है। तो भाई यूज कर लो, इतना ही अगर चुल है वो कैब करने का तो सीखो और वो वहां यूज करो ताकि रिकॉल हो, क्योंकि मोस्ट लोग जैसा आपने कहा यूज करते नहीं है, हम लोग एप्लीकेशन है नहीं। तो अगर आज को आप कोलेट भी कर ले, आज आपके पास 30 वर्ड आ जाए, आप वो कल भूल जाओगे। कल भी क्या, मैं तो रीड करने के आधे घंटे के अंदर ही भूल जाऊंगा। करेक्ट। मैं तो वो तो होता ही है, वो तो होता ही है। आप उसको यूज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। अगर यूज करना है तो भाई किसी कॉन्वर्सेशन में करो, थोड़ा अपना भी भाव भाव भरवा लो। हाँ मतलब कई बार लोगों के ऐसा भी होता है ना कि जबरदस्ती वो कॉन्वर्सेशन में वर्ड्स डाल रहे होते तो फिर हैं। जबरदस्ती आ रहा है। तो आई थिंक ठीक है, मतलब एज लॉन्ग एज इट इट इज हेल्पिंग यू, राइट, इट्स ओके। मेरे को कभी हेल्प नहीं की क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं। ठीक है, मेरे मतलब सिर्फ बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने एक्चुअली वोकैबलरी के ऊपर बहुत ज्यादा फाइट नहीं मारा, और वोकैबलरी बेस्ड एग्जाम नहीं है कैट। मतलब कैट के अंदर आपको वोकैबलरी ओरिएंटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कुछ कुछ उनका एग्जाम्स हैं जहाँ पे ट्रिक आते हैं कैसा मैथ था? वगैरह के अंदर एंड मैथ वगैरह के अंदर। पर कैट में आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं। वही उनका क्वेश्चन रहता है मेरे से भैया कि भाई कैट तो ठीक है, लेकिन अगर मैं एनमैट स्नैप जैट पे फोकस कर रहा हूँ और वो इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी से होता है एग्जाम में कि मैं एक हफ्ते में अपना वो कैब सही नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ कि जहां आप मेरे को बोल रहे हो वो कैब नहीं करो, बट फिर वो सब एग्जाम आपसे वो कैब डिमांड कर रहे हैं। बट अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हेमंत, अगर आप उन पेपर्स को देखोगे ना, उसके अंदर वोकैबलरी ऐसा कोई बहुत खतरनाक नहीं है। सिंपल सिंपल आपके वर्ड्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। आप रीडिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही इग्नोर मार दो। हम वर्ड पावर मेड इजी के बारे में बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप रीडिंग करते हो ना, तो भी आपको काफी वर्ड्स मिलते हैं नेचुरली। और जो वर्ड्स नेचुरली मिलते हैं सेंटेंस के दौरान, आपको परेशानी दे देते हैं किसी चीज को समझने में, उनको याद रखना आसान होता है। ठीक ये है, बात आपके लिए जब आप वर्ड पावर मेड इजी से कोई वर्ड पढ़ते हो ना, तो दैट इज जस्ट अ वर्ड फॉर यू। उसका और आपकी लाइफ में कुछ एप्लीकेशन नहीं है। होगा। लेकिन जब आप रीडिंग के दौरान पढ़ते हो, दैट्स अ नेचुरल वे ऑफ गेटिंग acquainted with a certain word, and therefore your chances of remembering that word is much greater. कोई वर्ड ने आपको परेशान कर दिया, पूरे आरसी का मीनिंग नहीं समझने दिया, आपको उस वर्ड से खुन्नस है, आप वो वर्ड याद रखेंगे। तो उसको फाइंड आउट करके, सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच यू कैन डू, विच विल हेल्प यू इन द अदर एग्जाम्स विच आर डिमांडिंग वोकैबुलरी। ग्रेट, ग्रेट कॉन्वर्सेशन। आई थिंक हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए हैं एंड इट विल जस्ट बी अ फन पार्ट। वहाँ श्योर श्योर हेमंत, चार यस। पांच क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड आप अपने हिसाब से आंसर करिएगा। श्योर। ठीक है, सो टेल मी द वन थिंग दैट begin the that was the biggest roadblock for you in your mock test. So one thing which was the biggest roadblock for me in the mock test, reading comprehensions. I was troubled by reading. मैं वीए पार्ट में ठीक करता था इनिशियली जब मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट करता था, बट मेरे लिए जो बिगेस्ट चैलेंज था वो आरसीसी थे। तो मैं आरसीज के अंदर मेरे से साथ मैंने बहुत सारी गलतियां आरसीज के अंदर करी हैं इनिशियली। एंड आई ऑल्सो हैड इनिशियली पुअर एक्यूरेसी इनटू द आरसीज। सो वन थिंग व्हिच आई कैन टेल यू ऑल इज कि अगर आपका आरसीज गड़बड़ है ना, तो कंसिस्टेंसी से इंप्रूव हो जाएगा। बेसिकली आपको करना ये है कि डेली रीडिंग रखनी है और आपको डेली सॉल्व करते जाना है। इनिशियली फॉर एग्जांपल आपका एक्यूरेसी खराब होगा, बट आप थोड़ा हम्म। सा एनालिसिस रखो,
आपको पता होगा कि कोई क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है ना, आपको एग्जाम में भी मालूम था कि यार ये गलत होने वाला है ना। तो उन चीजों के ऊपर थोड़ा कॉन्शियसली विचार करें और अपना एक रिदम, एक 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 स्ट्रक्चर बना के चलो। विद इन 30 डेज अगर आप फॉर एग्जांपल हर दिन 4-4 आरसी मार रहे हो, मेरा वही था, मैंने आरसी जब मैंने करना शुरू किया तो मैं दिन में 4 आरसीज कर रहा था, उसके अलावा मैं 2 से 3 रीडिंग्स भी कर रहा था। तो उतना मेरे को काफी हेल्पफुल लगा इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग इन वीआरस। Okay. What was your worst mock score? माय वर्स्ट मॉक स्कोर, आई टेल यू माय वर्स्ट मॉक एक्सपीरियंस, मेरा मेरा वर्स्ट मॉक स्कोर बहुत ज्यादा कम नहीं है हेमंत, लेकिन मेरा वर्स्ट मॉक एक्सपीरियंस ये है कि देयर वाज वंस आई वाज टेकिंग अ मॉक एंड आई वाज एक्चुअली नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, मेरा कुछ नहीं सॉल्व हो रहा था, तो मैं भाग गया मॉक छोड़ के, मैंने बंद कर दिया, मिडवे बंद कर दिया मैंने। ठीक है, दिस वाज अगेन 2015। ठीक है, तो मैं भागा, मतलब जान बचा के कि भाई ये मॉक ना मेरी जान ना ले ले। तो मैंने Oh, बंद कर दिया मॉक को, in वो from a मेरे वर्स्ट। practice. हाँ, तो प्रैक्टिकली व्हाट इज दैट स्कोर? दैट स्कोर इज जीरो, राइट? ठीक है, सो प्रैक्टिकली दैट इज अ जीरो स्कोर। मेरे से बेटर वो सब लोग हैं जो 10 नंबर भी ले आते हैं पर एंड तक बैठते हैं। तो मैं आपको, मेरे फॉर एग्जांपल द लास्ट 10 years, 10.5 years of experience, so I have taken more than 1,000 mocks. So while I have been training, I've taken more than 1,000 mocks. I've analyzed more than 1,000 mocks. मैंने काफी मॉक्स का लाइव एनालिसिस किया है। 2000, अगर हम फॉर एग्जांपल 18-19 से देखें तो 18-19 से लगभग लगभग अभी 2025 तक 6 साल में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलो कि लेट्स से दिसंबर से लेके, अगर हम फॉर एग्जांपल मार्च अप्रैल वाला पार्ट छोड़ दें, तो एवरी संडे मैं एक लाइव मॉक एनालिसिस में होता है। ठीक है, तो एवरी संडे मैं एक लाइव मॉक एनालिसिस करता हूँ। सो उसके अलावा फॉर एग्जांपल कई एनालिसिस टीम के साथ भी होती है। तो वन थिंग विच आई हैव लर्नड इज कि चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट हो, आप एंड तक डटे रहो, आप वहां से बहुत कुछ सीखोगे। और सिर्फ स्कोर के लिए मॉक मत दो, आपको मॉक तैयारी के लिए देनी चाहिए, आपको एप्लीकेशन के लिए देना चाहिए, आपको फोकस के लिए देना चाहिए, आपको इजियर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने के लिए देना चाहिए। आपको अपना मॉक स्कोर सबको बताने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ अपने मेंटोर को बता सकते हैं, उतना बहुत है। आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मॉक के अंदर यही होता है ना कि एम्बैरेसमेंट, कि बहुत लोगों को पता चलेगा कि ये भी पूछेगा वो भी पूछेगा, है ना। वो भूषण वाला, पंचायत वाला मीम मेरे को याद आ जाता है, वो बोलता है ना कि सेकंड अटेम्प्ट है कैट का तो कब कैट निकलेगा। हाँ हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, हम्म। पॉइंट इज कि तुम अपना प्रिपरेशन अपने तक रखो, तुम्हारा सक्सेस अपने आप शोर मचा देगा। तुम अपना मेहनत करते जाओ, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, बिलीव करो, और हर दिन मेहनत करो। ये बताइए, एक वर्ड में बताइएगा, विच वॉज द फनीएस्ट डिस्ट्रैक्शन while taking a mock? म्यूजिक। तो बेसिकली जब मैं कई बार ऐसा होता था ना कि रियल मॉक एक्सपीरियंस में लेने की कोशिश करता था। ठीक है, कि मैं सेंटर पे तो मेरे, जब मैं मॉक्स लेता था ना, तो कई बार वो रियल मॉक एक्सपीरियंस के चक्कर में मैं सोचता था कि घर पे नहीं दूं मॉक, मैं बाहर दूं कहीं पे। तो एक ना मेरे घर के पास में एक 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 कैफे हुआ करता था। अब तो कैफे धीरे धीरे बंद हो गए हैं ना, पहले कैफे होते थे थोड़े थोड़े। ठीक है, हम्म। तो वो कैफे में जाता था मैं, वो कैफे में म्यूजिक बज रहा होता था, हिमेश रेशमिया। ठीक है, और मैं ये भी नहीं बोल सकता उस कैफे में लोग आ रहे हैं, है ना, कि भाई कोई गेमिंग के लिए आ रहा है, कोई ब्राउजिंग के लिए आ रहा है, कोई रिजल्ट देखने आ रहा है, और मैं वहां बैठ के मॉक दे रहा हूँ, बैकग्राउंड में हिमेश रेशमिया चल रहा है। तो वो मेरा वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन होता था। लेकिन मैं सोचता था कि ठीक है, आई आई एम गोइंग टू कोप अप विथ इट। ठीक है, आई वुड रियली रिकमेंड कि ऐसा कुछ थोड़ा सा, कभी कोई लिविंग रूम में बैठ के मॉक दे दो, हमेशा अपने रूम में बैठ के मॉक मत दो, कोई थोड़ा सा एक अतरंगी एटमोसफियर में मॉक दे दो। आपको डिस्टरबेंस होगा, वो डिस्टरबेंस रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको कैट में भी डिस्टरबेंस होगा। लोग आसपास घूमते रहेंगे, कोई खांसे जा रहा है, कोविड बहुत पहले जा चुका है लेकिन इसका नहीं जा रहा। एक इंसान है जो कोऑर्डिनेटर से लड़ पड़ा है कि मेरे मेरे डेस्कटॉप में एक क्वेश्चन कम है।
एक एक इस बार का किस्सा था कि एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सबका 66 क्वेश्चन है, मेरे वाले में 68 है। उसको इन्विजिलेटर ने बताया कि अरे सबका 68 है रे भाई, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है इससा। तो वो भिड़ा हुआ था पहले 5-7 मिनट की, मेरे वाले में 68 क्वेश्चन क्यों हुआ। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें होती हैं, रियल एक्सपीरियंसेस। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रियल सिमुलेशन करो। जैसे फॉर एग्जांपल हेमंत माइट बी इंटरेस्टिंग टू नो, जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर हम लोग ऑफलाइन मॉक्स भी कराते हैं। तो बेसिकली जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो ऑफलाइन मॉक्स सेंटर पे आके ऑफलाइन मॉक दे दो। दैट इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगा इन अ एटमोसफियर जहाँ पे और भी लोग हैं। बिकॉज वो प्रेशर दिखता है जब आप लोगों के साथ बैठ के देते हो ना, उसका हम्म। प्रेशर अलग होता है। एक चीज मैं करता था अपने लिए कि मैंने क्योंकि कैट तीसरे बार दे रहा था तो मेरे को पता था माउस क्लिक्स बहुत ज्यादा होते हैं एट एनी रैंडम पॉइंट। कभी भी वो 2 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी माउस क्लिक तो रुकता ही नहीं है। तो मैं जब मॉक देने बैठता था, यूट्यूब पे एक वीडियो है माउस क्लिक का, मैं उसको ऑन करके बैठता था। तो पूरा टाइम टिक 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 आवाज आ रहा है जो असली सेंटर में भी होता है, एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग इन दैट। वो मेरे को करेक्ट। बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया वो तो। नहीं नहीं, बिल्कुल है। आई थिंक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे लोग घर वालों को बोलते हैं कि यार कोई नहीं आएगा मेरे रूम में। आप दरवाजा खुला छोड़ दीजिए कुछ मॉक्स के लिए, आने दीजिए लोगों को, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होने दीजिए अपने आसपास, ये भी तैयारी है। हम्म। ये बात तो सच है। बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल गॉट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। फाइनल क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर लाइफ बिफोर एंड आफ्टर एमबीए इन वन लाइन, इन जस्ट वन लाइन? आई थिंक बिफोर एंड आफ्टर एमबीए इट हैज बीन ट्रांसफॉर्मेशनल। ओके, आई वुड से दैट मैं पहले भी मेहनत कर रहा था, मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो बहुत इंप्रूव हो गई है। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप एफर्ट मारने वाले इंसान हैं, अगर आप एमबीए करेंगे तो आपका एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर सेल्फ, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द पीपल इन द सोसाइटी एट लार्ज एज वेल। एक ही सेंटेंस था ना। थोड़ा बहुत तो चलता है। तो टीचर है तो टीचर का तो हक ही है कि एक की जगह दो तीन बोल दे। टीचर को आप रोक नहीं सकते, वो तो कैरेक्टर है टीचर का। तो इट वाज फन हैविंग यू। I'm sure I'll include the necessary links in थैंक यू the सो मच, थैंक यू सो मच। description so that people can, take advantage of all the free things that are being offered. And एब्सोल्युटली। uh, I'm sure they will get a lot of value connecting with you. They can connect with me as well. I'll also give a एब्सोल्युटली। lot of value. एब्सोल्युटली। And यस। uh, we'll keep coming up with more videos, guys. For the people who are here till the end, ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक आपको सुधांशु सर के साथ 15 मिनट का फ्री सेशन देता हूँ। एब्सोल्युटली। अगर एंड आप तक दी एंड लिखना तो मैं समझ जाऊंगा आप एंड तक, और सुधांशु सर के साथ फ्री सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जितने भी लोग हेमंत को फॉलो कर रहे हैं, आई वुड से दैट यू आर इन द राइट हैंड्स। ही इज वन पर्सन हु इज जेन्युइन। of all the people that I know, he's one of the people who I have also mentored in the past, and I truly, truly respect him because of the good work that he's doing. So keep showing your love and support, and make sure that you follow his videos, follow his opinions, and अपना मेहनत करते जाइए। बाकी जहाँ भी आपको हेल्प लगेगी, हम आते रहेंगे, आपको हेल्प करते रहेंगे। एंड इफ यू वुड नीड एनी हेल्प, कनेक्ट करो यार, अच्छे से एफर्ट मारो। आई एम प्रिटी श्योर एक इंसान अगर एक परिवार से अच्छी जगह पहुंच जाता है ना, तो पूरा परिवार सेट हो जाता है। और यू नो या कुछ जनरेशंस भी, आई वुड से। सो आई वुड से कि एफर्ट मारो, क्या पता अपने परिवार में वो तुम ही हो। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स, एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू बी दैट पर्सन इन देयर फैमिली जो फैमिली स्टेटस को सोसाइटल वे में एक लेवल ऊपर लेके जाए। कई बट मैं कई लेवल ऊपर लेके जाएंगे, मेहनत करते जाइए। एक लेवल ऊपर लेके जाना तो आपको भी डेवलप करना होगा। सो गेट इन टच विद अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आई विश यू अ गुड डे। बाय थैंक यू हेमंत, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय। बाय।